चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic today is rather little bit complicated, but this is one of my favorite topics, as you all know. This is my specialization, further specialization in this. So, and I tell you, in your career, you will find such children. You will be referred such children for diagnosis and other problems. Shujat, please. And ये कोई इतना ज़्यादा out of course type चीज़ नहीं है. It is not something imaginary. It is very. These children are very much present, and inshallah, after today's talk, today's lecture, you will be able to handle these children in a better way. So, as usual, the learning outcome is at the end of this lecture, students will be able to classify and diagnose some IMD. Not all. There are a lot of disorders. We are not discussing all of them. We have selected a few of them to discuss. अगर कोई लेट ज्वाइन करे और उसको रिकॉर्डिंग राइटर चाहिए हो तो वो चैट में लिख दें. Naveen will monitor the chat. ठीक है? And डॉक्टर एनी, अगर आप इसको हाँ, अगर आपने कुछ करना ना हो साथ साथ, ठीक. ओके जी. एज आई रिकॉर्डिंग राइट किसको चाहिए जी? डॉक्टर खुशबा. ओके. ये थोड़ा सा आप लोग बियर करें इंटरप्शन, क्योंकि रिकॉर्डिंग राइट देना उनका राइट है. डॉक्टर खुशबा को चाहिए. डॉक्टर मसूद अंसारी के पास हैं. वेलकम मसूद. तैयारी, उम्मीद है तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी. यू आर ऑन द हॉट स्ट्रीट, आई सपोज. ओके. रिकॉर्डिंग राइट हो गई जी. अब तो मेरा ख्याल है. अच्छा जी. This is the hospital where I got training in these disorders. डॉक्टर शुमाइला आ गई. हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब ये भी ज़रूरी है. आप ज़रा जल्दी ज्वाइन किया करें, तो फिर मेरा ख्याल आइंदा से हम ये करेंगे, जो ख़ास टाइम के बाद जो ज्वाइन करे उसको हम राइट नहीं देंगे. फिर ये सोच लें आप, मार्शल लग जाएगा. डॉक्टर शुमाइला कितना है इसमें? ये मेरे पास, अच्छा ये डी से है ना. डॉक्टर शुमाइला आपके पास है राइट? आपके पास है, क्योंकि इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही आपकी. जी, आप अपना रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह. ओके जी. बस अब हम शुरू करेंगे. अब नहीं किसी को मिलेगा राइट. नो मोर इंटरप्शंस. अच्छा, तो दिस वाज द हॉस्पिटल वेयर आई वाज ट्रेन्ड इन दीज डिसऑर्डर्स. लेकिन ये थोड़ी पुरानी बात है. और साथ ही उसके एक इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ भी था. वहाँ पे भी इस पे कोर्सेज वगैरह होते थे, वर्कशॉप्स होती थी. और तीसरा एक मैनचेस्टर में हॉस्पिटल था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल पेंड्रीबरी. सो आई वर्कड इन दीज हॉस्पिटल्स specifically for pediatric metabolic disorders. There is some variation in the name of this group of disorders. Previously, we used to call them inborn errors of metabolism. But lately, in United Kingdom and other countries, they have changed the name to inherited metabolic diseases or disorders.
Probably because error is not a correct word in natural things, because nature doesn't do errors. नेचर की जो प्रिसीजन है, जो एक्यूरेसी है, वो तो एक सेकंड के कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्ट पे होती है. So they are not probably errors. These diseases are there to teach us about some basic metabolism, etc. So lately we are now calling them inherited metabolic diseases, and in Pakistan also, in at least in our setup and in AKU, etc. We have now started calling them IMDs. So IMD and IEM basically same thing. So if, you may find IEM written somewhere, it means the same. These are the what are these disorders actually? We will discuss today. There is a big name in this disorder. He is a French pediatrician, and he worked a lot. He's alive, mashallah, and still in 80s, and he travels a lot, giving lectures all over the world. And he also written a book, very nice book. I have got that book with me, Inborn Metabolic Diseases, and I got a PDF version of this book also. And that I will give only to that chemical pathologist who is interested in this. ठीक है. तो पहले मैं सोच रहा था आज के लेसन की बेस पे दूं, लेकिन वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हैं लोगों ने. तो बहरहाल अगर जिसको भी चाहिए हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन ये थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है. जिन्होंने अभी एग्जाम पास करना है उनके लिए प्रॉब्ली इतनी मुनासिब नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल्स है. ठीक है. सो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. अच्छा, ये फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, हमेशा कहता हूँ, ये आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें रेपिटेशन है, और जो सीनियर लोग सुन रहे हैं, आई एम सॉरी कि ये मैंने वही चीजें लानी है. मैं अब नई चीजें बहुत कम होती है लाने के लिए. ठीक है. तो आपको वही चीजें सुननी पड़ेंगी. सो these as a individual disorders, so they are not common, they are rare. 1 in 5,000 to 1 in 10,000, etc. But as a group, they are very common. They become more common. 1 in 800. Exact incidence in our population is not known, but we suspect that it is these diseases are more common in our country because of the intermarriages, and we need to work a lot in this area, and this is an area open for research, and at least we should have a data for disorders, and we do not have presently. Most difficult task for a clinician is to know when to consider IMD and which test to order for evaluation. और दूसरी इसमें जो पैथोलॉजिस्ट है, केमिकल पैथोलॉजिस्ट है या क्लिनिकल केमिस्ट है, he has got a great sense of achievement when he is working on in this area. डॉक्टर आयशा नहीं है बीच. इसकी वजह ये है, इसके मैं आपको बड़ी एक जबरदस्त वजह बताता हूँ कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के बायोकेमिकल मैकेनिज्म. ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करें. किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करें. किसका ऑन है? ओके, ये डॉक्टर हौरा का ही ऑन है. हिना, डॉक्टर हिना. Sir, I don't know where to switch it off. अच्छा, चलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग राइट भी देता हूँ, और आप लोग एक मिनट के लिए और रिकॉर्डिंग राइट तो है आपके पास, तो प्रॉब्लम अब म्यूट हो गया. अच्छा, मैंने म्यूट कर दिया सबको, लेकिन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. अगर आपको बीच में कोई इंटरप्शन करनी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, वो राइट है आपके पास. ठीक है.
but presently I unmuted all of you. I unmuted all of you. ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि इसमें जो सेंस ऑफ अचीवमेंट इसलिए होती है बिकॉज ये जो डिसऑर्डर है खासतौर पे डायग्नोसिस में कि ये कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें. किसी का मोबाइल ऑन है? अच्छा, तो इस वजह से उनको ना पीडियाट्रिशियंस को समटाइम्स उनको समझ नहीं आती कि कौन सा डिसऑर्डर है, कि किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट करना है. और you are the people who are you can be very helpful to them and you are supposed to help them. They are not supposed to know all those details. We are supposed to know them. And कोई ऐसी बात बड़ाई वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि हम उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत होती है फिर उसमें. कई दफा वो बच्चा बस भेज देते हैं आप कि खुद ही आप देख लो इसमें ये चीजें हैं जो टेस्ट करने हैं, जिस तरह भी आपने प्रोसीड करना है कर लें. ठीक है, तो 100% तो जाहिर है हम हेल्प नहीं कर सकते उनकी, लेकिन बहुत सी जगहों पे हम उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है, एक जो डिसऑर्डर है ना वो वेस्ट पेपर टाइप अक्सर होता है और वो सीपी है, सेरेब्रल पाल्सी. सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं जो किसी बर्ड ट्रॉमा या किसी और वजह से हुआ होता है, तो उसमें हम नहीं को खास हेल्प कर सकते हैं उनकी. ठीक है, ओके. कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हैं आईएमडीज के. when you should suspect IMD parallel to other common conditions, for example sepsis. The signs and symptoms are very general, very non-specific. For example, poor feeding, lethargy, failure to thrive, and majority of cases may be sporadic. जरूरी नहीं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ना ढूंढेंगे फैमिली में है या नहीं. ये नहीं आप कहते कि अगर फैमिली में एक फिनाइलकीटोन यूरिया आ गया, बच्चा सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप हिस्ट्री लें कि पहले तो कभी नहीं हुआ तो ये नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है, ये स्पोरेडिक ही होते हैं ज्यादातर. ठीक है, IMDs ऑफ इंटॉक्सिकेशन आर यूजुअली अमेनेबल. हाँ, अच्छी बात ये है कि कुछ डिसऑर्डर्स इनमें ट्रीटमेंट भी हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर नाउ मोर अवेलेबल. तो चैलेंजेस क्या है? साइन एंड सिम्टम्स आर ऑफन नॉन स्पेसिफिक. रूटीन चाइल्डहुड इलनेसेस excluded should be excluded first. IMD is considered only secondarily. Unfamiliarity with the biochemical interrelationships diagnostic tests, ये जैसे मैंने बताया कि क्लिनिशियंस को नहीं होता. इनअप्रोप्रिएट सैंपल नहीं सही कलेक्ट होता. सैंपल स्टोरेज का भी इशू है. तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं. सो व्हेन IMD शुड बी सस्पेक्टेड, कब हमें IMD सस्पेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं जो रफली जो साइन सिम्टम है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं वो ये हैं. न्यूरोलॉजिकल डिटोरेशन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन. यानी आप उसके फिट्स पड़ सकते हैं, उसकी मसल टोन खराब हो सकती है, रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम आ सकती है. तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो बच्चे में है ना वो ज्यादा है. और ज्यादातर न्यूनेट्स यानी फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, उसमें ये सिम्टम्स होती हैं. Metabolic acidosis is a very common finding, ठीक है, except one or two. Hypoglycemia is one of the hallmark of these disorders, but it is not present in all of them. Inappropriate ketosis. Actually, ketosis जो है, this is a protective phenomena in the presence of hypoglycemia. जब hypoglycemia बच्चे में होता है तो कीटोसिस इज अ प्रोटेक्शन. वाई? कौन बताएगा? आप लोग भी जब भी माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो जी. हाँ, एक जरा जूनियर बताए. हाँ, लेकिन वो क्यों हो रहे होते हैं? गुड आंसर डॉक्टर सादिया कि फैट्स यूज होने शुरू हो जाते हैं. बट व्हाई बॉडी इमीडिएटली स्विच टू द फैट? ब्रेन यूज करते हैं. ठीक है, बिकॉज ब्रेन जो है ना वो मेन आपका हेडक्वार्टर है, तो उसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई है वो ग्लूकोज है. व्हेन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल देन कीटोन्स आर यूज्ड. सो ऑल if there is a disorder in which glucose is less, there is hypoglycemia and ketones are absent, that is a very dangerous disorder. We will discuss it further. Then hypotonia, cardiomyopathy,
पेट्रोसेलुलर डिसफंक्शन, फेलियर टू थ्राइव इटसेल्फ। फेलियर टू थ्राइव बड़ा कॉमन है वैसे, ये मुझे जरा ऊपर लिखना चाहिए था। फेलियर टू थ्राइव से सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास रेफर होते हैं इसके लिए। चलें जी, एक एमसीक्यू है जो कि आपके उसमें तो नहीं है, पहले मैंने वैसे कहीं पूछा हुआ है लेकिन आपके लेसन में नहीं था। एक है डिजीज मैपल सिरप यूरिन डिजीज, MSUD, विच इज अ डिजीज ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले मैं जरा बेसिक साइंसेस देखूं। ये जूनियर लोग ही जरा बताएं कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स 3 कौन कौन से हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ठीक है, शाबाश। तो इनके जो डिसऑर्डर्स हैं इनको मैपल सिरप यूरिन डिजीज कहते हैं। एक्चुअली मैपल जो है ना वो एक ट्री है, मैपल ट्री कहते हैं, चनार मरी में बहुत है, कश्मीर में है, बाराडिव का साइन है हमारे, सॉरी सिविलियंस को तो नहीं पता होगा। बहरहाल ये पूरा कश्मीर में है, सिर्फ मरी में नहीं, आपके ये कश्मीर में है, ठीक है, चनार होता है। और एक मुल्क ऐसा है जिस अभी आपने नहीं बताया, एक मुल्क ऐसा है जिसमें जिसके उनके फ्लैग पे है। मैं जनरल नॉलेज तो देखूं, ये पढ़ाकू बच्चे कुछ और पढ़ते भी हैं कि नहीं? लड़कों से पूछूं, क्यों लड़कियों को नहीं आता? कनाडा में, शाबाश, गुड गुड गुड, कनाडा लिखा भी आ रहा है, डॉक्टर आसमा ने लिखा है। रेड कलर का जो चनार ट्री है, मैपल ट्री है, वो कनाडा का इसलिए कि वहां बहुत ज्यादा होता है, तो वहीं से वो सिरप शिरप बनाते हैं। मगर पाकिस्तान में भी मैपल सिरप, मैंने वाइफ से पूछा था एक दफा, कहती है हाँ ये यहाँ पे होता है, हम कोई डिशेस वगैरह में डालते हैं, मुझे नहीं पता वैसे। ठीक है, तो ये उस जैसा, वो कोई डार्क ब्राउनिश कलर का होता है सिरप। सिरप का मतलब मीठी चीज होती है, तो वो डार्क, तो बच्चे का यूरिन उस कलर का आने लग जाता है, तो इसलिए उसको मैपल से। पैथोलॉजिस्ट दे आर नोटोरियस टू गिव नेम्स ऑफ फूड टू देयर डर्टी थिंग्स। ठीक है, तो एंचोवी सॉस एक्सेट्रा आपने पढ़ी होंगी। तो इनमें से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, ये जरा बिल्कुल जूनियर लोगों से क्वेश्चन है, अच्छा जिन्होंने पहले लेसन किया हुआ है वो जरा प्लीज ट्राई टू होल्ड योरसेल्फ। तो मुझे बताइए कि इसमें से किस में फिट करेंगे आप इसको, कौन सी ग्रुप में आप डालेंगे मैपल सिरप यूरिन डिजीज? अगर कुछ किसी का बैकग्राउंड नॉलेज है तो बताएं। हाँ जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये तो बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर सिमी ने बताया, इट्स रियली इम्प्रेसिव, बिकॉज ना तो ये रात के लेसन में था क्वेश्चन, और दूसरा ये मैंने इसलिए नहीं डाला था ये कि मुझे थोड़ी सी आप ये लगा कि आपको मिलेगा नहीं, है बहुत मुश्किल है इसकी सर्च, लेकिन एक्सीलेंट, आपने अपनी कॉमन सेंस से प्रॉब्ली बैकग्राउंड नॉलेज से आंसर किया। यस, एग्जैक्टली, इट बिलोंग्स टू द IMDs which give rise to intoxication. So how we classify these disorders, then we come to the classification. कुछ किताबों में क्लासिफिकेशन लिखी हुई है बायोकेमिकल बेस्ड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, those IMDs which involve glucose metabolism, involving amino acid metabolism, involving lipid metabolism, cholesterol, etc., etc. But that is not very useful because it is more of a academic type. So this Professor Sadubari, whom I introduced earlier, he introduced a very useful clinical classification of these disorders, and I usually follow these. Most of the people now follow this classification. The first group is disorders that give rise to intoxication, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है, मेनली हम इसी को डिस्कस करेंगे. Second, disorders involving energy metabolism, and third is disorders involving complex molecules. अभी हम डिस्कस करते हैं क्या करके. So group 1 intoxication type is those IMDs that lead to acute or progressive intoxication from accumulation of toxic compounds proximal to metabolic block. ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज्यादा जो है बड़ा ग्रुप है. इसकी बेसिस पहले मैं जैसे कहा करता हूँ स्लीस उर्दू में बता दूं, फिर इसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे. ये होता है कि बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, बहुत thousands and thousands metabolic pathways हैं, which involve enzymes. One substrate is converted to a product by the action of enzyme. ठीक है, and there may be further subsequent reactions also. So whenever
there is a fault in the one enzyme, what will happen? Substrate will increase or the product will increase? Is the enzyme is blocked? Substrate. Okay? Substrate is increased. Simply it is like this. And usually that substrate is, when it is in very large amount, it becomes toxic to the tissues. That is the basis of these disorders. Simple. ठीक है, अभी हम देखते हैं जरा सा डिटेल में इसके. What can go wrong? For example, this is cell, and I owe this slide to Dr. Aisha from AKU, and उनकी presentation से मैंने ये slide ली थी. Thank you very much, Dr. Aisha. So she's also working a lot on these disorders along with Dr. Leena Jaffrey. So हम AKU में Dr. Aisha भी और Dr. Leena Jaffrey और इधर भी हम लोग पूरी टीम है, सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेरे साथ डॉक्टर आयशा हफीज हैं, एंड आई कांट फाइंड हर हियर. कोई प्रॉब्लम होगी आज तो उनके लिए बहुत कुछ था. Okay, amino acid enters into the cell and it is converted into substance A. It is not amino acid, it is substance A. Substance A is converted into substance B. Substance B is converted into substance C. And for example, the enzyme which involved in conversion of B to C is blocked. So what will happen? That B will be increased. B increase हो जाएगा, ठीक है. और for example, B कोई और reaction है in which B is converted into D, and then this is involved in conversion of, ये देखिए ना, T, for example, ये D जो है, it is involved in the conversion of E to F. So if D is not formed because or it is in excess form, it will lead to inhibition of E to F, and you will find excessive E and low F. तो इस तरह का भी हो सकता है, एपोएंजाइम में भी हो सकता है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो ब्लॉक से प्रॉक्सिमल चीज होती है वो इंक्रीज होती है और वो टॉक्सिक होती है. सो इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं अमाइनो एसिडोपैथीज. दिस इज probably the most important group. Amino acidopathies में phenyl ketone urea, maple syrup urine disease, and tyrosinemia. There are more and more disorders also in this. एक का नाम और बता दे कोई सीनियर जो इस ग्रुप में है. पहले ग्रुप नहीं, आसिफ आमनी जी नहीं. एल्काप्टोन यूरिया एग्जैक्टली इस तरह नहीं है. हाँ जी, अच्छा वो तो टायरोसिनीमिया ही हो गया ना. नहीं, चलें फिर अभी अब देखते हैं, ठीक है. यहाँ मैं एक और नाम ले दूं. यहाँ पे एक लड़का आसिफ है, नॉन कीटोटिक हाइपर, मुझे पता था इसको आता है, नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है. अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है. तो ये आसिफ इज ए टेक्नोलॉजिस्ट माशाल्लाह, बट ही इज गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है. ये सबसे ज्यादा काम करता है इस पे. तो उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिडीमियाज में बहुत सारे हैं, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया, प्रोपाइनिक एसिडीमिया, एसिबुलेरिक एसिडीमिया, ठीक है. तो इनको हम डिस्कस अभी फर्दर नहीं करेंगे. उसके बाद यूरिया साइकिल डिफेक्ट्स, जिसका आपको क्वेश्चन भी था, इट आल्सो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. arginine-6 lyase deficiency, ornithine carbamyl transferase. ये ornithine lyase and ornithine carbamyl transferase ये क्या चीजें हैं? ये क्या है? Enzymes. They are enzymes, ठीक है. And they are involved in the in urea cycle. By the way, what happens in urea? What is the significance of urea cycle in liver? जी डॉक्टर विकास. माइक ऑन करके देखो. नो बंद करो. एक्सीलेंट. अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर. अमोनिया इज, जी डॉक्टर बात आपने भी ठीक लिखा, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन लेसर टॉक्सिक. यूरिया भी कोई बहुत मजेदार चीज नहीं है, लेकिन 12 लेसर टॉक्सिक है, ठीक है. तो दिस इज मेन फंक्शन ऑफ लिवर. यूरिया इज, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया.
Then sugar intolerance. This is the group of carbohydrate disorders, and galactosemia is a glaring example of this. Then hereditary fructose intolerance also. लेकिन ये fructose intolerance insignificant है, इसको हम नहीं discuss करते. Second group is defects in energy metabolism. Can anybody tell me what is the most important biochemical finding in this group? Most important biochemical finding. Seniors लिखें जरा इसमें. हाँ, इधर से जवाब आ रहा है लेकिन उन तक पहुंचा नहीं है. आपकी कमी महसूस डॉक्टर आयशा को और अस्सलाम वालेकुम. ठीक है जी. इसमें जी आप तक आवाज नहीं पहुंची इसलिए लिखे हैं आप. लिखें जरा. हाइपोग्लाइसीमिया सनम. एक्सीलेंट. हाइपोग्लाइसीमिया कायदा मेडिकल कॉलेज. गुड. तो ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना, इस पे एक सेपरेट प्रेजेंटेशन भी है, वो अगर आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा. हाइपोग्लाइसीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट biochemical finding in IMDs, and there is a specific group of disorders in which you then put them. लेकिन ये दूसरों में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस ग्रुप में हो, दूसरे ग्रुप्स में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. हाइपोग्लाइसीमिया precipitated by fasting, yes, by fasting, by diet, by anything. ठीक है. This is also a characteristic. Thank you for reminding. Hypoglycemia precipitated by feed, hypoglycemia precipitated by fasting. तो उससे भी आप डिफरेंशिएट करते हैं दो डिसऑर्डर्स को. So hypoglycemic disorders, gluconeogenesis defect, glycogenesis defect, hyperinsulinism and fatty acid oxidation disorders, ये सारे इसमें आते हैं. Then congenital lactic acidemias, ये भी इस ग्रुप में आते हैं एनर्जी वाले में, और इसमें खास तौर पे ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं. पायरुवेट कार्बोक्सिलेट डेफिशिएंसी, क्रेब्स साइकिल डिफेक्ट्स, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन. ये जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता था वहाँ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, वो जो नहीं होते साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं, वो उसकी डिजीज. और वहाँ पे एक छोटा सा शहर, छोटा तो नहीं खैर, बहरहाल लंदन से छोटा शहर था, शिफील्ड में होता था वो. कोई वहाँ पे केमिकल पैथोलॉजिस्ट था, ओनली ही वाज डूइंग दिस रेस्पिरेटरी. So all the cases were referred to, samples were sent to Sheffield for these disorders. ऐसा भी होता है वहाँ पे. Okay, disorders involving complex mechanisms. These disorders, they are usually not amenable to treatment. No treatment is available. They do not present acutely. They do not present. They are progressive, permanent, independent of इंटरकरेंट इवेंट्स. ठीक है, ये ग्रेजुअल ही चलते जाते हैं. ट्रीटमेंट के बारे में ये है कि अब कुछ जगहों पे इसके एंजाइम्स अवेलेबल होने शुरू हो गए, तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी नहीं है. यूजुअली नॉट अमेनेबल टू ट्रीटमेंट, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इनके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो जाए. व्हाट इज, देखें, जब ये बच्चा इस तरह प्रेजेंट करता है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम उसके हाईली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट नहीं है, बल्कि एक बैटरी ऑफ टेस्ट है. और वो बैटरी ऑफ टेस्ट भी सॉडोबरी ने बड़ी अच्छा उसको बताया था, और उसके ग्रुप्स भी हैं, और वो मैंने आज के लेक्चर में तो ना डिटेल डाली. लेकिन ये बेसिक टेस्ट हैं जो आपने जरूर करवाने हैं बिफोर रिजॉर्टिंग टू दी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस. ABGs हैं. ABG इज अ मस्ट. अगर आपने प्रॉपर डायग्नोज करना है तो आपको ABGs जरूर कराने, ताकि आप देखें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या नहीं है. ठीक है. ब्लड ग्लूकोज जरूर कराना है, इलेक्ट्रोलाइट, अमोनिया, लैक्टेट, ALT, यूरिया, यूरिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यूरिन कीटोन्स, एंड ब्लड CBC और CP. देन देयर आर कंफर्मेटरी टेस्ट. जी कुछ लिखा हुआ है? अच्छा, okay. Then there are confirmatory tests, amino acids by HPLC in the blood and urine, CSF, again amino acids, organic acids in the urine, acyl carnitine in plasma, orotic acid, and so on and on. बहुत सारे और भी हैं. enzyme analysis भी, जो चंद एक labs हैं दुनिया में
which actually carry out those enzymes which are involved. For example, if you want to exactly confirm which which urea cycle is enzyme is deficient, तो आप वो enzyme भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी labs में होता है. वो exactly बताते हैं कि ये enzyme deficient है या नहीं. This is the HPLC which we are using here, and this is from Biochrome, and TakeU also exactly same instrument, and FIP, and this is providing us a great help to the for the diagnosis of various disorders. We are now capable of doing 32 amino acids and their metabolites. The sample is collected in the plasma. Plasma is collected in the lithium heparin tubes. So it is very important that it is not done in serum. It is in the plasma collected in lithium heparin tubes. Out of 32, we do 23 amino acids. जी हाँ, तो हम 23 कर रहे हैं इनमें से, और which are quite sufficient. और ये हमारी अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि जब कोई इंक्रीज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत ही अनमिस्टेकेबल उसकी पीक होती है, बहुत हाई पीक होती है, आप उसको मिस नहीं कर सकते इस इंस्ट्रूमेंट के साथ. Then we are also now having functional LC-MS, and we are doing methylmalonic aciduria. We will discuss this disorder soon. This is a very complicated and very sophisticated instrument. This has got to do a lot in today's talk. ये instrument आज का बहुत important character है, अभी हम discuss करेंगे इसको. अब हम patients of IMDs जो मैंने कल आपको भेजे थे, there were about 8 patients जिनका data मैंने आपको भेजा था, वो discuss करेंगे, और कुछ 2-3 मैंने और ऐड भी किए हैं उसमें. ठीक है, 2 MCQs तो वो दूसरी किस्म के थे, 8 जो थे वो सिनेरियो बेस्ड थे, अगर आपको याद होगा. ठीक है, एंड यू डिड वंडरफुल. मैं भी आज मैंने काफी रिजल्ट भी कंपाइल कर लिया. जिनका 8वें तक आ गया था उनका रिजल्ट आज मेरे पास रेडी है, एंड आई विल शो यू द लिस्ट. दैट इज रियली इम्प्रेसिव, very very impressive. Your search, most of you have done wonder in that. So we'll discuss those disorders. बहुत ब्रीफ सा डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है. और थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि सारे ऑप्शन नहीं लिखे, जो करेक्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है वही सिर्फ लिखूंगा. So a newborn of 5 days refuses to take feed, has vomiting and lethargy. He develops hepatomegaly, jaundice, edema, ascites and sepsis. और इसके फाइंडिंग सी हाइपोग्लाइसीमिया ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ऑन फीडिंग. ठीक है, यूरिन फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंस पॉजिटिव, यूरिन फॉर बाय ग्लूकोज स्ट्रिप वाज आल्सो पॉजिटिव. हाँ, इसमें नेगेटिव दिया है, लेकिन सॉरी इसमें मैं चेंज करना भूल गया, थोड़ा सा आसान किया था आपके लिए. ओके, पुटिंग द बेबी ऑन लैक्टोज फ्री मिल्क रिवर्स द फाइंडिंग. ठीक है, जरा सीनियर ना जवाब दें. डॉक्टर हारा, थैंक यू वेरी मच, आपका आंसर आ गया. अब देखते हैं बाकियों ने क्या कहा. जी, इधर से शुरू करते हैं. डॉक्टर नौशीना, आपने क्या लिखा था, क्या बी किया था? हाँ, चूंकि वो ऑप्शन नहीं है, नाम गैलेक्टोसीमिया. ठीक है, यस इट वाज गैलेक्टोसीमिया. ठीक है, निदा, व्हाई इट इज गैलेक्टोसीमिया, व्हाट आर दी थिंग्स. आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, जो एफसी पार्ट 2 वाले हैं, जो जूनियर हैं उनके लिए भी हो सकता है, बाकियों के लिए भी, तो ये भी होगा कि व्हाई यू से दिस. ये भी तो हो सकता है ना, आपने रटा लगाया हो कि जब 5 डेज वाला न्यूनेट होगा तो गैलेक्टोसीमिया होगा. तो एग्जामिनर भी पूछ भी सकते हैं ओरल में, और आप उसमें एसक्यू में भी हो सकता है क्वेश्चन. राइट 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ योर डायग्नोसिस. जी निदा, आप बताइए 3 पॉइंट्स आपके क्यों, क्या है इसमें. hypoglycemia which increases on breastfeeding. इसका मतलब कि there is something going on when there is milk inside the body. जब milk बच्चे में जाता है तो क्या डॉक्टर खुशबख्त ने क्या लिखा है, लैक्टोज फ्री मिल्क गिवन. सेकंड पॉइंट ये लिख दिया उन्होंने, आप जल्दी से बता दो ना. अच्छा, वो तो उन्होंने लिख दिया. और
रिड्यूसिंग सब्सटेंस पॉजिटिव है और ग्लूकोज नेगेटिव है, साथ ये जरूर करना है, वरना तो डायबिटीज मेलाइटिस में भी ग्लूकोज भी तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ना, यानी रिड्यूसिंग सब्सटेंस पॉजिटिव है, ग्लूकोज नेगेटिव है। कौन बच्चा जो नया नया ग्रेजुएट है बताएगा व्हाट आर द रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस? रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं बताएं ना, आप ही नदा बता दो। ग्लैक्टोज, शाबाश, और है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, सुक्रोज भी नो नो, मोनोसैकेराइड, हाँ तो सुक्रोज नहीं है, अच्छा याद रखना। तो इसका आपको एक छोटा सा मैं बता दूं, आपके प्रोफेशनल कैरियर में बाजू का ऐसा पेशेंट आएगा जो कि चीनी डाल के ले आएगा अपने आप को शुगर बनाने के लिए ना, अब तो नहीं होता लेकिन यूरिन में अगर कोई चीनी डाल के ले आए तो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आता है। तो बहरहाल ये सारे रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। तो अच्छा अब फ्रुक्टोज क्यों नहीं है? फ्रुक्टोज भी तो हो सकता है, लेकिन फ्रुक्टोज की कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज उसका नेगेटिव है और रिड्यूसिंग सब्सटेंस पॉजिटिव है तो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ग्लैक्टोज ही बचता है फिर, तो इसलिए हम उसको ग्लैक्टोसीमिया डायग्नोज करते हैं। अच्छा यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, इस यहाँ पे ये भी है कि आप उसको एक दफा कंफर्म करें, आप उसका मिल्क चेंज करें, लैक्टोज फ्री मिल्क दें, अगर वो नेगेटिव हो जाता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस तो काफी डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। अब एक दफा और करें, फिर उसको नॉर्मल मिल्क दें, यूजुअल मिल्क दें, ठीक है, फिर रिड्यूसिंग सब्सटेंस पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल कर, क्योंकि लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस है ना, आप उसको पूरी लाइफ के लिए एक चीज सुना रहे हैं, तो बेहतर है कि 2-3 दफा करके उसको कंफर्म कर लें, ठीक है। तो एक तो ये जी जी वो गथरीज, वो उसके लिए इसको कहते हैं गथरीज। एक्सक्यूज मी जी, 5 मिनट के लिए आप इंतजार करें। एक घंटे का लेक्चर उसका इफेक्ट देखने के लिए किसी को एक घंटे, पूरा एक घंटा उसका पूरा बायोकेमिकल बेसिस है सारा कुछ। तैयारी करके लेकिन आज तो समय हाँ वो उसको आ जाएंगे आपको तो वैसे भी तो मेरी भी गेम हो गई लाइए के कल लाएंगे दे जो हैं बारिश ने बंद कर दिया सिग्नल नहीं, यू फोन के हैं ये हमारे। हेलो वकार
वो मेरे बैग्स में यूएसबी मुझे दे दो। ठीक, यू फोन के हैं, वारिद के नहीं है। वारिद के नहीं है और यू फोन के हैं। वारिद के भी हैं, टेलीनॉर के भी हैं। वारिद नहीं है, यू फोन है और टेलीनॉर के इनके मोबाइल में है? नहीं है, नहीं सिग्नल। आप डायल करें, वो नहीं आएगा, नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, वारिद के नहीं है, यू फोन के हैं। अभी मैंने बात की, अभी मैंने की बात, अभी मैंने की। यू फोन के हैं, उसके हैं, टेलीनॉर सॉरी जोंग के हैं, दोनों। लेक्चर के बाद में ऊपर टैक्सी का चक्कर लगाने सबको बताया बेटा। जिंदगी आपने मुझे तो मना किया। मैंने कहा था इनको जाने नहीं, हम लोग तो एक ही दफा बहुत रश हो गया, नहीं बहुत रश हो गया, 30-25 तो थोड़ी आइडिया हम लोग ये ना केमिस्ट्री वाले ट्रेनिंग या क्या हो गया इसको? वो लैपटॉप? ओके जी। सो इट इज ग्लैक्टोसीमिया, बस हम सॉरी मैं जरा ज्यादा ही बोल गया इस पे। तो नेक्स्ट इज दिस। हाँ जी, इधर से शुरू करते हैं। डॉक्टर सादिया अली। फिनाइल कीटोन यूरिया, इसमें एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है मौसी ऑर्डर जो है ना, मौसी ऑर्डर बस जी। अब आप बताइए इसके पॉइंट्स। सादिया आपको, हाँ कीटोन बॉडीज हैं, चलो और हाँ मौसी ऑर्डर उन्होंने लिखता है, ठीक है। हाँ लेकिन सबसे मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज फिनाइलएलनिन की पीक है इसमें HPLC में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डॉक्टर सादिया ये फिनाइल कीटोन यूरिया में होता क्या है, क्या चीज? अच्छा ये बताइए कि कौन सा अमाइनो एसिड कम हो जाता है? चलिए ये कौन बताएगा? टायरोसिन, वेरी गुड, बच्चों ने बहुत अच्छी सर्च की कल। So phenylalanine is converted into tyrosine, ठीक है। So when the enzyme is deficient, phenylalanine cannot be converted to tyrosine, and phenylalanine is very simple as that, and phenylalanine is very toxic. ये जो बच्चे होते हैं mentally retarded होते हैं, ठीक है। और अगर आप early इनको diagnose कर लें तो how will you treat them? क्या चीज डाइट में, क्या चीज रिस्ट्रिक्ट करेंगे डॉक्टर सादिया अली? एक जी, कौन क्या चीज डाइट में करेंगे? एंड एनी इंटेलिजेंट गेस? प्रोटीन नहीं, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो नो नो। प्रोटीन तो बच्चे को जरूरी होती है, तो बड़ा जुल्म करेंगे आप जी। और लिखें, आप लोग भी लिखें और आप बोलें भी। एक्सी, हाँ फिनाइलएलनिन बच्चे को लिख के देंगे, फिनाइलएलनिन नहीं लेनी ऐसा नहीं है, ठीक है आपकी बात ठीक है। फिनाइलएलनिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट, सॉरी फिनाइलएलनिन डेफिशिएंट डाइट, जैसे आपने लैक्टोज फ्री मिल्क दिया था ना, ऐसी डाइट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें फिनाइलएलनिन नहीं होती उसमें, ठीक है। ऐसा फ्लोर होता है या ऐसी ब्रेड बनी हुई होती है, ऐसी चीज होती है
जिसमें फिनाइलैलानाइन नहीं होती। ये बहुत कॉस्टली होती है डाइट, ये आसान नहीं है बना। हमारे मुल्क में एक आध अगर कभी डायग्नोज किया भी हमने तो यही प्रॉब्लम है कि वो डाइट नहीं मिलती, फिनाइलैलानाइन डेफिशिएंट डाइट नहीं मिलती। तो आपको अगर आप जल्दी डायग्नोज कर लें इन बच्चों को तो यू कैन गिव देम फिनाइलैलानाइन डेफिशिएंट डाइट एंड देन दे विल बी नॉर्मल। मैं हमेशा ये स्टोरी आपको सुनाता हूँ, ये इतने नॉर्मल होते हैं बच्चे एज अदर्स, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो एंड यू डू नॉट ऐड हैंडीकैप पर्सन इन द सोसाइटी, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे हॉस्पिटल के टॉमन स्ट्रीट में एक लड़की थी, वो हैड बिकम 22 इयर्स और वो फिनाइलकीटोन्यूरिया था, पीकेयू था उसको, और फिर उसकी भी शादी हुई, उसका भी बच्चा हुआ और वो नॉर्मल था बिल्कुल, ठीक है। ओके जी, नंबर 3, हाँ नेक्स्ट नौरीन। नहीं ए नहीं, मुझे वो क्या चीज है वो, अच्छा ये वाला निकाल लो, ये वाला बच्चा है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया, यही है ना, यही है। अच्छा हाँ, क्या निकाला है आपने, इतना मुश्किल, वो कैसे? अच्छा हाँ, उधर से डॉक्टर बाद ने यही लिखा है, वेरी गुड, दिस वाज प्रॉब्ली ए वेरी डिफिकल्ट केस, लेकिन डॉक्टर नौरीन ने गुड जी, आपने ये बुझ लिया, आपने ढूंढ लिया। ये जो डिसऑर्डर है, दिस वेरी डेंजरस, दीज डिसऑर्डर्स आर वेरी डेंजरस। व्हाई दे आर डेंजरस नौरीन? हाँ, जब हाइपोग्लाइसीमिया है तो इनअप्रोप्रिएटली लो कीटोन्स हैं, जितने कीटोन्स होने चाहिए वो नहीं है। तो ये इसलिए ये फैटी एसिड्स जो होते हैं बॉडी में दे ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। तो एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन gluconeogenesis. When there is no gluconeogenesis, no ketones, this hypoglycemia can be very dangerous then, ठीक है। तो होता ये इन बच्चों में कि वो अगर उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बच्चे जब किसी वजह से भी शॉर्ट सा पीरियड इनका फास्टिंग का आ जाए, फीड ना लें, तो दे सडनली डाई, हाइपोग्लाइसीमिया से डेथ हो जाती है। तो दे हैव बीन नाउ इम्प्लिकेटेड एज ए कॉज ऑफ सिड्स, यू नो सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स की एक कॉज है। इस वजह से ये इतने, हालांकि ये भी रेयर डिसऑर्डर है, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यूके में वन ऑफ दोज डिसऑर्डर्स इज नाउ इंक्लूडेड इन देयर रेगुलर प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, व्हिच इज MCAD, मीडियम चेन असाइल, जो मीडियम चेन वाला डिसऑर्डर इन वन ऑफ देम, उसको न्यूरल स्क्रीनिंग में ऐड किया गया बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। पेशेंट नंबर 4 जी, रैंडमली आज कह रहे हैं शुजात। आपके आंसर बहुत जबरदस्त होते हैं यार, तुमने एमफिल में फिर नहीं अप्लाई किया, बस अपनी मर्जी करते हो। हैं चलो, शाबाश, वेरी गुड। PHHI, यस गुड। इसमें क्या चीज है आपने बताइए? फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा है, ठीक है। अब हाइपोग्लाइसीमिया जब बच्चे को हो, ठीक है, जब हाइपोग्लाइसीमिया हो तो एक आपने एकदम उस पे फैटी एसिड या किसी और चीज पे नहीं जाना, ठीक है। बेहतर है कि उसकी इंसुलिन जरूर करवा लें, ठीक है। तो इंसुलिन अगर ज्यादा है और उसका हाइपोग्लाइसीमिया है, देन बहुत ऑब्वियस है। और ये जो PHHI है ना, ये बाकी जो IMDs हैं उनमें से ज्यादा कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास केसेस आते रहते हैं। अभी अगले दिन हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट बता रहे थे कि उनके पास 3 पेशेंट्स हैं PHHI के जो वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी सर्जरी हुई है और होता क्या है कि इसमें स्मॉल ट्यूमर्स होते हैं बीटा सेल्स के, पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स होते हैं जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी है।
पहले तो आप उनको रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली आप उनको ग्लूकोज देते हैं, 5% 10% ग्लूकोज देके उनको यू कीप देम अलाइव ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। और फिर उनको जब आप देते हैं ग्लूकोज तो उसके बाद लेकिन असल ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट सर्जरी है और आप पार्शियल पैंक्रियाटेक्टमी करते हैं, पार्शियल पैंक्रियाटेक्टमी। और उससे फिर जाहिर है पार्शियल पैंक्रियाटेक्टमी के बाद दे मे बिकम डायबिटिक्स। कौन सी डायबिटीज होगी ये जो पैंक्रियाटिक के बाद होगी? पैंक्रियाटाइटिस, नो अदर स्पेसिफिक टाइप, इसमें गलती ना करो। डायबिटीज मेलाइटिस की क्लासिफिकेशन आपको समझ आनी चाहिए, आपको याद नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए उसकी। इट इज नॉट टाइप 1। जब पोस्ट पैंक्रियाटेक्टमी डायबिटीज होती है वो अदर स्पेसिफिक टाइप में होती है, ठीक है। तो ये डायबिटिक फिर बाद में हो जाते हैं और फिर आप उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अभी ये मुझे बताइए कि इसमें कीटोन भी तो नेगेटिव है, फिर तो ये वो फैटी एसिड क्यों नहीं है? भाई याद रखिए, ये बात याद रखें कि इंसुलिन जो है दिस इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, इट इज नॉट ए कैटाबॉलिक हार्मोन। इंसुलिन डजंट कॉज कीटोएसिडोसिस। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कीटोएसिडोसिस होती है, आपको पता है ना। डीके टाइप 1 डायबिटीज में होती है विच इज टोटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डीके का पता है ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वो टाइप 1 में होती है। तो जब इंसुलिन ज्यादा होगी तो कीटोन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया विद एब्सेंस कीटोन नजर आए तो इंसुलिन जरूर करवा लें आप बिफोर रिजॉर्टिंग टू दोज डिसऑर्डर्स, एफएओ वगैरह। तो आप इंसुलिन जरूर करा लें क्योंकि ये मैंने बताया कि ज्यादा कॉमनली आपको मिलते हैं। देन पेशेंट नंबर 5 इज, हाँ जी इधर से हैं, उसमें केडिस में हाँ बहुत जगहों पे आते हैं, बार बार आ रही हैं चीजें। हाँ जी, डॉक्टर नूर अफशा पीछे क्या लिखा है आपने? मैपल सिरप डिजीज, मैपल सिरप यूरिन डिजीज लिखा है आपने जी। और आप लोगों ने क्या लिखा है जरा? नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया जी। और वेरी गुड, एक्सीलेंट। नॉन कीटो, इट इज नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया। पहली तो बात ये है कि जब आप ये लिखेंगे ना, ये लतीफा हमेशा चलता है साथ साथ ये जो, तो लोग कहते हैं जी आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है। पैथोलॉजिस्ट ने को स्पेलिंग ही नहीं आते, उसने हाइपरग्लाइसीमिया लिखना था हाइपरग्लाइसीमिया लिख दिया, ठीक है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया ही है बिकॉज इट इज इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लाइसिन नॉट ग्लूकोज, ठीक है। तो NKH कहते हैं इसको। इट्स अ वेरी डेंजरस डिसऑर्डर, ये बहुत हाई मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी है। ये बच्चे बिल्कुल नहीं बचते, आप डायग्नोज कर भी लेते हैं तो उनकी साथ ही डेथ हो जाती है। तो ये हमने केडस में भी दिया था आपको। दिस वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट केस जो हमने यहाँ पे अपने डायग्नोज किया था और इसका ग्लाइसिन लेवल बहुत हाई है। क्रेडिट गोज टू आवर टीम, डॉक्टर आयशा एंड आसिफ, कर्नल आमिर। तो ये बहुत हाई पीक थी इसकी ब्लड में भी और CSF में भी। उसके बाद भी 1-2 केसेस में हमने देखा ये था, लेकिन बच्चे वो दे कुडंट सर्वाइव आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। और क्लिनिकली बहुत इनको सीजर्स होते हैं, फेलियर टू थ्राइव, यानी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा होती हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि CSF में भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। CSF में बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारा वो फर्स्ट केस था, ये मैंने पहले भी शेयर की हुई स्लाइड। देखें कितनी हाई पीक है ग्लाइसिन की इसमें ना, जो हमने देखी थी इसमें। सो डिसऑर्डर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड कैटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट्स हैं। तो कैटाबॉलिज्म के जो डिफेक्ट्स हैं उसमें यूरिया साइकिल्स हैं, ग्लाइसिन है, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन यूरिया वगैरह हैं, और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड डिफेक्ट्स हैं, MSUD, ठीक है। और जो डिफेक्ट्स इन ट्रांसपोर्ट है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, उसमें PKU, एल्केप्टन यूरिया वगैरह ये सारे शामिल हैं, ठीक है। पेशेंट नंबर 6 जी, डॉक्टर इधर सालिया, आपने क्या किया इसको? ठीक है, ऑर्डर तो ठीक है ना ये इसमें?
यूसीडी प्रेजेंट विद मेटाबॉलिक एल्कोसिस। जी। और आपने नहीं किया सालिया? ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर तो वही है, प्रोटिक एसिड नहीं लिखा आज। चले कोई बात नहीं, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। यूरिया साइकिल है, ठीक है, ये वही है यूरिया साइकिल भी। हाँ, यूरिया साइकिल को मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ये भी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि यूरिया साइकिल में जो एंजाइम, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन वेरियस स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल and each of these enzyme can be deficient and that can lead to the similar condition which is called urea cycle disorders. तो इसमें खास जो चीज़ है, क्लिनिकल चीज़ है या जो बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल है। क्लिनिकली तो वही न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, सीजर्स होती है, सब कुछ होता है। लेकिन मुझे ये बताइए, दो ऐसी चीज़ें हैं सालिया जो आपको शुरू में डिस्टिंग कर देती हैं बाकी डिसऑर्डर से। अब जिससे मैं पूछूंगा उसने बताना प्लीज। हाँ, आप लोग भी लिखें, मुझे 2 पॉइंट्स ऐसे बताएं जो बहुत डिस्टिंग करते हैं यूरिया साइकिल को बाकी डिसऑर्डर्स के साथ। अमोनिया, वेरी गुड। प्लाज्मा अमोनिया इज वेरी वेरी हाई, नॉट हाई, वेरी वेरी हाई, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, इसलिए कि अमोनिया यूरिया में नहीं कन्वर्ट हो रहा। बहुत सिंपल सी बात है, अमोनिया ही कन्वर्ट नहीं हो रहा तो अमोनिया बहुत हाई। अमोनिया बहुत सारी कंडीशन में हाई होता है, लिवर की बहुत सारी कंडीशन में, बच्चा जब सिक होता है तो अमोनिया हाई होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हाई होता है। बुक्स में लिखा हुआ है 150 मिलीमोल से ज्यादा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि इससे भी ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है ना। हाँ, वरना आम लिवर डिजीज में भी हाई हुआ होता है हमारे जी। और सेकंड पॉइंट क्या है जी, सही बताएं, मेटाबॉलिक एल्कोसिस इज नॉट करेक्ट आंसर। नहीं, यूरानोक्रोटिक एसिड तो हमारे यहाँ होता नहीं है फिलहाल। मेटाबॉलिक एल्कोसिस इज नॉट द राइट आंसर। गिव मी राइट आंसर। सेकंड पॉइंट क्या है जी? ग्लूटामिन इंक्रीज है, लेकिन वो सारे डिसऑर्डर्स में नहीं होता। हाइपरमोनीमिया विद नॉर्मोग्लाइसीमिया एंड एब्सेंस ऑफ, यस, वेरी गुड डॉक्टर बात, इज एक्सीलेंट आंसर। Zaira, she is now appearing in the exam. इसका परफेक्ट आंसर है, इट इज एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। याद रखिए, इट इज नॉट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इट इज एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। देयर मे बी मेटाबॉलिक एल्कोसिस, मे नॉट बी, इवन नॉर्मल एबीजीज भी हो। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है फिर ये डिसऑर्डर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो हमने बताया था ना कि बेसिक टेस्ट आपने करने हैं पहले तो ये बेसिक टेस्ट आपको, बेसिक बायोकेमिकल टेस्ट, क्लिनिकल फीचर्स, ये आपको लीड करते हैं टू दैट ग्रुप, उस ग्रुप की तरफ ले जाते हैं, फिर आप फर्दर कर सकते हैं। तो शुरू में जब हमारे पास ये वाली फैसिलिटीज नहीं थी तो हमने एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन बनाई थी कि आप कम से कम ग्रुप की तरफ ले जाएं, आप ग्रुप को तो डायग्नोज कर लें। तो वो अब जरूरत नहीं, इसलिए हम वो गाइडलाइन ज्यादा नहीं हम करते। तो अब तो लेकिन अभी भी अगर आपको ग्रुप पता होगा तो फिर आपके लिए आसानी होगी डायग्नोसिस की। तो बेसिक टेस्ट बहुत जरूरी है इसमें। पेशेंट नंबर 7, एक उधर से जा रहा है, किधर से जी? सिविल जी, डॉक्टर दी एसटीओ, ग्रेट एसटीओ डॉक्टर नादिया, सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर हैं जी हमारी, हम इस एसटीओ कहते हैं जी। ऑर्गेनिक एसिड यूरिया, वेरी गुड। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि पॉइंट्स कौन से हैं? मिथाइल मेलोनिक एसिड हाई है। सिंपल बात ये है कि बहुत आसान है डायग्नोज करना, अगर आपको पता हो कि मिथाइल यानी एमएमए, मिथाइल मेलोनिक एसिड हाई है इसमें। और मिथाइल मेलोनिक एसिड इज वन ऑफ दी ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। और चूंकि यूरिन में हम डायरेक्ट नहीं करते, ये बात याद रखिए। ये इतने छोटे बच्चे हैं कि आप इनका 24 यूरिन ले नहीं सकते, स्पॉट यूरिन में करना पड़ता है। तो स्पॉट यूरिन में डायरेक्ट टेस्ट का फायदा नहीं होता, तो हम साथ क्रिएटिनिन रेशो करते हैं। ये जितने अमाइनो एसिड्स हैं, हमने, डॉक्टर आयशा ने बहुत मेहनत की है इस पे, डॉक्टर आयशा फीस ने, और उन्होंने सारे अमाइनो एसिड्स की क्रिएटिनिन रेशो निकाल के नॉर्मल रखी हुई है, ठीक है। और वो अगर यूरिन का टेस्ट बहुत स्पेरिंगली होता है तो अमाइनो एसिड का भी, और अब हमने इसका भी,
ये जो ऑर्गेनिक एसिड हैं इनका भी हमने यूरिन की रेशियो निकाली हुई है, ठीक, उसी तरह हम रिपोर्ट करते हैं इसको। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये लेकिन कोई केमिकल पैथोलॉजी बताए कि मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया इंक्रीज होना या इसके प्रेजेंस और कौन सी एक कॉमन डिजीज को या कॉमन कंडीशन को का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कोई भी बता दे, लिखें इसमें। मेगालोब्लास्टिक किडनी में, वेरी गुड। लेकिन जरा यहाँ बैठ के हेमेटोलॉजी का आंसर ना करें आप प्रॉपर आंसर दें ना इसका। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी MMA इंक्रीज होता है और साथ क्या इंक्रीज होता है, दूसरा होमोसिस्टीन, ठीक है, होमोसिस्टीन और B12 इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे हम अपने कोशिश करते हैं इकोनॉमी की, हम कहते हैं कि B12 डेफिशिएंसी के डायग्नोसिस के लिए आप ये टेस्ट नहीं करवाएं, ये ज्यादती है ये टेस्ट करवाना, ज्यादा आसान नहीं है कि आप उसको B12 देख के उसका दोबारा करवा लें, जो मैक्रोसाइटोसिस वगैरह देख लें उसकी, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये इसकी एक इंडिकेशन है, खासतौर पे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में असल में प्रॉब्लम ये है कि B12 और फॉलिक एसिड लेवल इतने अच्छे इंडिकेटर नहीं है। बहुत मजे की बात ये है कि फॉलिक एसिड लेवल भी और B12 लेवल अच्छे इंडिकेटर नहीं है इनकी डेफिशिएंसी बताने के, ठीक है। वो रेफरेंस रेंज में फर्क होता है, पॉपुलेशन में फर्क होता है, डाइट में फर्क होता है। तो इनकी अगर आपने सही तरह से डेफिशिएंसी को आपने ढूंढना है तो आपको होमोसिस्टीन करनी पड़ती है, होमोसिस्टीन दोनों में डेफिशिएंट होती है, और मिथाइल मेलोनिक एसिड विटामिन B12 सिर्फ विटामिन B12 में डेफिशिएंट होता है, ठीक है। पेशेंट नंबर 8, ये अब कौन बताएगा जी? सुफियान। MPS म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस जी। क्लिनिकली जो फीचर्स हैं उसमें क्या चीज इसको बता, एक लफ्ज लिखा हुआ है पूरी इस सिनेरियो में, एक लफ्ज लिखा हुआ है पूरे सिनेरियो में जो के इसको बताता है। पटोस्प्लिनोमेगाली भी है लेकिन फेशियल डिस्मॉर्फिज्म। सो डिस्मॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज, ठीक है, डिस्मॉर्फिया। ये एक मैं किस वक्त आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगा। एक हमने हमारे पास आते रहते हैं इसके पेशेंट्स, एक पेशेंट आई थी एक से मुजफ्फराबाद से, और वो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक उसके फीचर्स से इस तरह से, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव डिजीज है और अभी तक तो कोई इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं, और ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है डिसऑर्डर्स का, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स है शामिल हैं जो कि आपके उसमें नहीं आते प्रीव्यू में। ये जो हेपरान सल्फेट है ये कनेक्टिव टिश्यू का मार्कर है और ये इसमें इंक्रीज होता है, और कैराटान सल्फेट। और आप इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कोई सीनियर मुझे बताए कौन सी चीज इन जो ये बायोकेमिकल सब्सटेंस हैं इनको क्या कहते हैं जी? गे यार आसिफ कमाल है, वेरी गुड। गैग्स लिखा भी है, गैग से बनता क्या है? ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकोसान्स, ठीक है। तो ये गैग्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और आप गैग्स की इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फिर आप पर्टिकुलर डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं, ठीक है, विच वी डू नॉट, हमारे पास नहीं है फिलहाल फैसिलिटी जी। पेशेंट नंबर 9 ये नहीं था आपके पास, ये क्या है जी? वो खत्म हो गया पिछला, अब नेक्स्ट। हाँ तो कोई जगह नहीं है, नहीं है आपके पास। पेशेंट नंबर 9 सामने से ही देखें बस, क्या लिखे डॉक्टर साहब ने? हाँ पायरो, इसका पूरा लिख देना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, गुड। पायरुवेट कंप्लीट, इसकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके, हाँ डॉक्टर साहब ने तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस लिख दिया, लेकिन ये हम ग्रुप भी कर सकते हैं, और अगर आप एग्जैक्ट लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन आप इसको कंजेनिटल इलेक्ट्रिक एसिडोसिस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन कंजेनिटल इलेक्ट्रिक एसिडोसिस इस ग्रुप का नाम है। और इसकी खास चीज क्या है जी? कॉमन सेंस विच इज अनकॉमन जी। इधर से बताइए जी डॉक्टर। CSF लैक्टेट, ठीक है, लैक्टेट भी प्लाज्मा लैक्टेट भी इंक्रीज है, बहुत इंक्रीज है,
और CSF लैक्टेट भी इंक्रीज है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत सीवियर है, severe metabolic acidosis, high lactate in plasma, high lactate in CSF, that gives you clue towards the group which is congenital lactic acidemia. ठीक है, उसके बाद आप फर्दर करने का मेरा ख्याल आपको इतना नहीं है, फिर जो हमारे सीनियर हैं वो इसको जरा थोड़ा सा और स्टडी कर लें कि और कौन कौन से इसमें डिसऑर्डर हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पेशेंट नंबर 10। हाँ जी, ये मुश्किल आ गया। हाइपोग्लाइसीमिया है, ब्रीफ और लैक्टेट इसमें भी हाई है, और पेशेंट को हेपेटोमेगली भी है और शॉर्ट स्टेचर भी है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, वेरी गुड, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1, डॉक्टर सबात ने और डॉक्टर खुशबख्त ने खान से सही लिखा। GSD1, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये इनको GSDs कहते हैं, इसके भी कुछ 7 टाइप्स हैं फर्दर। ठीक है, अब ये 7 टाइप्स हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आपको जरूरत नहीं है सबकी, लेकिन ये ग्रुप है पूरा। और ये इसकी खास बात जो है ना वो हेपेटोस्प्लेनोमेगली है, हेपेटोमेगली खास तौर पे। और ये डिसऑर्डर हेमेटोलॉजी वालों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें बोन मैरो भी की जाती है और बोन मैरो में भी मैक्रोफेजेस वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो इनके बड़े फैंसी नाम भी हैं, मसलन वॉन गेक्स डिजीज, हंटर डिजीज, पॉम्पी डिजीज वगैरह। तो ये सारे जो टाइप 1 है मोस्ट कॉमन होती है, इसके 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर। एक तो इसमें प्लीज बताइए, ऊंचा बताइए सर। एक तो इसमें लैक्टेट लेवल बहुत ज्यादा रेज होते हैं, दूसरा हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया होती है, तीसरा हाइपरयूरिसीमिया होता है। हाइपरयूरिसीमिया, ये आप देखें कि करण नवीन ने बहुत अच्छा बताया कि लैक्टेट इंक्रीज होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स होते हैं, और साथ ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होता है, यूरिक एसिड इंक्रीज होता है। तो वो टाइप 1 को खास बताता है। ठीक है, अब वर्ड कुछ थोड़ी सी स्लाइडें मैं आपको दिखाऊंगा न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि every child which is born in a community is subjected to certain tests. Every child, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड every child है। हर बच्चा जो किसी कम्युनिटी में पैदा हो, अगर उसके कुछ टेस्ट करवाए जाएं तो उसको न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कहते हैं या न्यूनेटल स्क्रीनिंग कहते हैं। और जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप, अमेरिका, जापान वगैरह, उनमें ये नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, और हर मुल्क के अपनी वो डिजीजेज हैं जिनको वो सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं। तो ये करैक्टर है, ये मैंने बहुत दफ़ा प्रेजेंटेशन दी है और हो सकता है आप आइंदा भी बहुत दफ़ा सुने। ठीक है, तो इसके कुछ प्लेयर्स हैं इस बाकी जो पार्ट है प्रेजेंटेशन की। एक बेबी होगा, गथरी होगा, वाइड मिडवाइफ होगी, पंचर, बाइसिकल, कंप्यूटर, पैथोलॉजिस्ट एंड विलन्स। ठीक है, बेबी हमारा सेंटर है क्योंकि ये न्यू बॉर्न है। अब ये इस जो NBS के लिए बेबी कितनी एज का होना चाहिए? 3 to 5 days। ठीक है, नॉट मोर देन दैट, नॉट अर्लियर देन दैट। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हैं कि 5 million children die in the first month of life in developing country। 50 लाख बच्चे, ये जो सारे मुल्क हैं हमारे, इनमें पहले महीने में मर जाते हैं। 4 million are born with some congenital anomalies, ये WHO की फिगर्स है। ठीक है, और almost 27 to 30% of babies dying of SIDS are now proved to be having IEM या IMD। ठीक है, जैसे मैंने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इफेक्ट बताया आपको। और 5 to 15% of all sick units in NICU are expected to have some IEM। पहले वो सेप्टिसीमिया वगैरह एक्सक्लूड करते हैं, उसके बाद IEM करते हैं। अच्छा, अब NBS जो है वो इसमें जेनेटिकल टेस्ट भी इन्वॉल्व है, एंडोक्रिनोलॉजिकल जेनेटिक डिजीजेस, एंडोक्रिनोलॉजिकल डिजीजेस एंड हेमेटोलॉजिकल डिजीजेस सारी इन्वॉल्व है। ये सिर्फ बायोकेमिकल या केमिकल पैथोलॉजी का डोमेन नहीं है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इसमें स्क्रीन किए जाते हैं। तो अब आप जरा बताइए कि ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने गलत किया है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सैंपल कौन सा लेते हैं? हील ब्रेक। अच्छा, अम्बिलिकल कॉर्ड क्यों नहीं ले सकते जी? ये कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड भी लोगों ने लिखा है। ये तो मतलब बहुत आसान है अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड लेना। जी डॉक्टर सिद्रा, अच्छा आपने ये लिखा जी, किसने अम्बिलिकल कॉर्ड लिखा?
अच्छा, क्वेश्चन गलत हो गया, चलें कोई बात नहीं। अम्बिलिकल कॉर्ड से इसलिए नहीं लेते, क्यों नहीं लेते अम्बिलिकल कॉर्ड से? मिक्स 3 डेज में कौन सा अम्बिलिकल कॉर्ड बचा होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि वो मिक्स ब्लड होते हैं, ठीक है। तो इट इज हील प्रिक, वीनस नहीं कर लेना, बच्चे का वीनस नहीं लेना आपने, सेप्सिस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप हील प्रिक, पूरी दुनिया में हील प्रिक से लेते हैं, ठीक है। एनबीएस में और भी चीजें शामिल होती हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में। एक तो स्पॉट टेस्ट हो गया, इसको स्पॉट टेस्ट भी कहते हैं, इसको स्पॉट टेस्ट भी कहते हैं, इसको हील प्रिक टेस्ट भी कहते हैं, इसको एनबीएस भी कहते हैं। और हेयरिंग भी चेक होती है इसमें, ठीक है, वो हमारा डोमेन नहीं है। और जनरल जो फिजिकल एग्जामिनेशन है बच्चे का, कि यूरिन पास किया है, स्टूल पास किया है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई बाकी सारी चीजें हैं, ये सब एनबीएस का पार्ट है, ठीक है। लेकिन मैटरनल स्क्रीनिंग इसका पार्ट नहीं है। ये जो डॉक्टर नौरीन का प्रोजेक्ट है वो इसमें नहीं है, वो जो फर्स्ट टाइमेस्टर सेकंड, ये ना समझे कि वो भी इसमें, मैटरनल स्क्रीनिंग इज सेपरेट। और एक छोटा सा लीगल इशू मैं आप बता दूं, एनबीएस में पेरेंट्स कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैटरनल स्क्रीनिंग में मदर का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। यू ऑफर मैटरनल स्क्रीनिंग बट यू डू नॉट ऑफर एनबीएस। ऑफर नहीं करते आप, एनबीएस करते हैं, क्योंकि बच्चा स्टेट का होता है, ठीक है, तो उसमें हर बच्चे का किया जाना जरूरी है। तो यूरोप में 64 में स्टार्ट हुआ, और फिनाइल कीटोन यूरिया जो अभी आपने पढ़ा, एक डिजीज जो हमने आज नहीं पढ़ी वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। और उसको डिटेक्ट ना करना, जैसे मैं कहता हूँ, ये क्रिमिनल है, ये जरूर हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत आसान है, वो एक थायरॉक्सिन दे के हम करते हैं, ये पहले हमने डिस्कस किया। इसके अलावा मुख्तलिफ सिकल सेल डिजीज, बायोटिन, एमकैट जो कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट है, CH कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेजिया, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यूरोप अमेरिका में हर स्टेट की डिफरेंट है, लेकिन जो मैंडेटरी हैं वो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, PKU, ये बिनाइन हाइपरफिनाइलेमिया भी है कोई वहाँ पे, ट्रांसफरेज डेफिशिएंट गैलेक्टोसीमिया। ये गाल्ट जो है ना, गाल्ट, ये गैलेक्टोसीमिया का टेस्ट है। जाहिर है न्यूबॉर्न में आप रिड्यूसिंग शुगर तो नहीं करोगे ना। अब न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का सिचुएशन है। प्लीज इस जब ये डिस्कस कर रहे हो या आपसे पूछा जाए, उसमें यूरिन का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे का यूरिन टेस्ट नहीं हो सकता। उसमें स्वेट क्लोराइड का नाम ना लीजिएगा, हर बच्चे का स्वेट क्लोराइड, आपके पास वही स्पॉट है, आपने स्पॉट में ही टेस्ट करना है। अब उस स्पॉट में से आपने गैलेक्टोसीमिया भी रूल आउट करना है, आपने PKU भी करना है, आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस भी करनी है, सब कुछ उस स्पॉट से ही करना है। तो यहाँ पे आप रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन यूरिन कहेंगे तो ये बहुत ही ऑड बात होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे गाल्ट करते हैं, ट्रांसफरेज डेफिशिएंट गैलेक्टोसीमिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में जैसे कि जेनेटिक, आप मुझे ये बताएं, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, CH को कैसे आप करेंगे? CH की कंजेनिटल हाइपोप्लेजिया की आप न्यूट्रल स्क्रीनिंग कौन से टेस्ट से करेंगे? 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीक में पैथोफिजियोलॉजी का लेक्चर जूम का, वी विल डू इट ऑन DSD, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसमें CH भी डिस्कस करेंगे। ये सिकल सेल डिजीज जो है, इसके लिए हीमोग्लोबिन चेक करेंगे आप, उसके वेरिएंट्स चेक करेंगे। MSUD होमोसिस्टीन यूरिया के लिए वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स चेक करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि आप चेक करते हैं। तो एशियन कंट्रीज में चाइना ने शुरू की, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं, इंडिविजुअल हॉस्पिटल लेवल के हैं। और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बताएंगे आपको कि नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट इन आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, हमने सिस्टम को ऑर्डर कर दिया है, और उसमें 6 डिजीजेस के लिए हम शुरू कर रहे हैं। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए PKU फिनाइल कीटोन यूरिया, CH के लिए हम क्या करेंगे? 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए क्या करेंगे? इम्यूनोरिएक्टिव ट्रिप्सिन। और दूसरा ये जो आपके हैं सिकल सेल डिजीज के लिए, ठीक है। तो ये 5-6 डिजीज के लिए इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, गैलेक्टोसीमिया के लिए गाल्ट, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, ये गथरी वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिड दिस टेस्ट, और उसके अपने बच्चे को PKU था, तो उसने सबसे पहले गथरी कार्ड बनाया था। गथरी कार्ड एक फिल्टर पेपर है जिसपे सर्कल्स बने होते हैं, उसके अंदर आपको सैंपल लेना पड़ता है, ठीक है।
ये देखेंगे इसमें गथरी कार्ड बने हुए हैं ऊपर, और ये गथरी कार्ड के ऊपर सैंपल लिए जाते हैं और उसमें पेशेंट के बच्चे के सारे पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं। और ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ना, ये स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स बने हुए हैं। तो 4, 5, 6 जितने स्पॉट्स लेने हैं आप ले लेते हैं, ठीक है। तो आप उससे फिर फर्दर टेस्ट करते हैं। तो मिडवाइफ इज द रियल पर्सन, क्योंकि हर बच्चे का लेना है, तो आप डॉक्टर तो नहीं ले सकते ना, ये गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन वगैरह तो नहीं ले सकते। तो मिडवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हील प्रिक से गथरी कार्ड पे सैंपल लेगी एंड सेंड दोस कार्ड्स टू लेबोरेटरी। वो रीजनल लैब्स आइडेंटिफाइड होंगी जहां वो कार्ड्स भेजे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं, कई दफा मिडवाइफ भूल जाती है भेजना या समथिंग लाइक दैट। अब लैब के अंदर जब सैंपल आ जाता है तो एक पंचर मशीन होती है, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड, आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है पंचर, क्योंकि हर सारा 200, 300, 400 सैंपल डेली आ रहे होते हैं लैब में, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं उस रीजन में, तो सारे आपको कार्ड आ रहे होते हैं। तो वो इंडिविजुअली हर कार्ड पे नहीं आप कर सकते, तो एक पंचिंग मशीन होती है, वो खास मेजरमेंट की स्पॉट जो है ना वो उसमें वेल में डाल देती है, नीचे की वेल्स बने हुए हैं, और उसको आप प्रोसेस कर देते हैं फिर। चलें जी, ये क्वेश्चन आपके उसमें नहीं था। मुझे बताइए, which of the following technique is said to have revolutionized the NBS program? Tandem mass, शाबाश, गुड। Tandem has really revolutionized, because Tandem की कुछ खूबी है, और ये बाइसिकल क्यों कहते हैं कि Tandem वर्ड का मतलब होता है दो चीजें साथ साथ एक जैसी लगी हो ना। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे हमारी बड़ी अच्छा एक मॉलिक्यूल है, डॉक्टर जुबा और डॉक्टर मैरीन, तो दे वर्क इन टेंडम, हम कहेंगे दे वर्क इन टेंडम, इकट्ठे काम करते हैं। तो साइकिल के जैसे 2 पहिए होते हैं, इस तरह की ये मशीन है। अब तो खैर उसमें ट्रिपल हो गया, अब 3 हो गए, लेकिन पहले इसलिए टेंडम नाम रखा गया कि पहले इसमें 2 एक जैसे MS से मास स्पेक्ट्रोमेट्री 2 एक जैसी रखी होती थी, ठीक है। तो सिमिलर टू बाइसिकल हैज रेपिटेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल कंपोनेंट्स, 2 mass spectrometers joined together by a collision chamber, also called MSMS, इसलिए इसको MSMS भी कहते हैं। ये एक फोटोग्राफ है, लेकिन मैंने आपको अपने लैब की फोटोग्राफ भी दिखाई थी। तो ये ह्यूज इंस्ट्रूमेंट, एंड इसकी कुछ खूबी है। एक तो ये अमाइनो एसिड्स भी चेक करता है, कार्निटीन्स चेक करता है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर। इसकी थ्रूपुट बहुत ज्यादा होती है, यानी ये बहुत सारे सैंपल एक वक्त में हैंडल कर लेता है, और बड़ी एक्यूरेट प्रिसाइज है, स्पीडी एनालिसिस, तो और लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स, बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठे रन कर सकते हैं आप इस पे। सो इट इज बीइंग यूज्ड नाउ फॉर वेरियस IMDs, बहुत सारे IMDs की न्यूनेटिक स्क्रीनिंग में दिस टेंडम इज बीइंग यूज्ड। लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, और इसके लिए इसका जो रनिंग है वो बड़ी एक्सपर्टाइज की जरूरत है। रनिंग कॉस्ट इतनी नहीं है, रनिंग कॉस्ट कम है, लेकिन इसको जो चलाने के लिए बहुत अच्छे आपके पास साइंटिफिक ऑफिसर्स होने चाहिए, विच वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छे हैं हमारे पास। तो अभी हम और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वी हैव गॉट 2 टेंडम्स इन आवर लैब। जैसे डेल्फिया की मैंने उस दिन बात की थी, फ्लोरेसेंस टेक्निक है, तो डेल्फिया इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज। डेल्फिया भी बहुत अच्छा सिस्टम है फॉर न्यूनेटल स्क्रीनिंग, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। और जो हमने ऑर्डर किया है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज डेल्फिया बेस्ड, वो डेल्फिया बेस्ड है, और वो उसकी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट काफी कम है। पैथोलॉजिस्ट का काम क्या है कि उस सारी चीज को ऑर्गेनाइज करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना, और नई टेक्निक्स लाना। क्योंकि जब अगर कोई डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाए, पिक हो जाए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में, तो इमीडिएटली आपको पीडियाट्रिशियन को बताना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आपको अच्छा डेटाबेस चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा सैंपल हैं, आपने उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपने इन्फॉर्म करना है पीडियाट्रिशियन को, तो डेटाबेस बहुत अच्छा चाहिए होता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में कौन सी डिजीज शामिल नहीं है, बाकी सारी हैं, एक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ आंसर्स आए थे, जरा से वेरिएशन थी, लेकिन सी सबसे ज्यादा था, एंड विच वाज करेक्ट। अब क्वेश्चन वही है कि वाई गिलबर्ट डिजीज क्यों शामिल नहीं है। आप लोग भी लिखें, और इधर से भी आंसर आना चाहिए। मिसबा, बिनाइन कंडीशन है, तो इससे सबक ये मिलता है कि कंडीशन का कॉमन होना जरूरी नहीं है,
Gilbert disease is probably the most common inherited disorder. 10% तक पॉपुलेशन में गिलबर्ट डिजीज है, ठीक है, जो कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, ठीक है, बिनाइन होता है, सिर्फ ये कि कॉस्मेटिकली आंखें कभी कभी पीली हो जाती हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं है बॉर्न स्क्रीनिंग करने की, इतने कॉमन होते हुए भी। एमकैट बहुत लेस कॉमन है, मे बी रेयर है, लेकिन इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिटेक्ट करना, आप बच्चों में सिड्स ना हो जाए, आप ये जो हाइपोथायराइडिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीटमेंट इतना आसान है। तो 2-3 क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस के ऊपर ये कि उस पॉपुलेशन में कौन सी डिजीज ज्यादा है, वो उसका कोई ग्रेव कॉन्सिक्वेंस तो नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी ट्रीटमेंट है कि नहीं। तो यूजुअली आपको जो थर्ड हमारा ग्रुप है उसके डिसऑर्डर्स नहीं स्क्रीन में मिलते क्योंकि उनका ट्रीटमेंट नहीं है। एमपीएस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं है। जीएसडीज नहीं मिलते, उनका ट्रीटमेंट नहीं है। तो लेकिन अगर आपको पता चल गया कि बच्चे को एमकैड है तो आप सिंपल एडवाइस करेंगे माँ को कि इसको बहुत फ्रीक्वेंट फीड दे, इसको कभी फास्टिंग ना रखे। अगर आपने पीकेयू डायग्नोज कर लिया तो आप उसकी डाइट का अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिकल सेल का आप लोगों को पता है, सिकल सेल अवॉइड कर सकते हैं, सिकलिंग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आवर पीडियाट्रिक टीम, ठीक है। तो ये हमारी पीडियाट्रिक टीम की एफर्ट्स थी सारी आज की टॉक में। तो आज मैंने आपको कहा था मैं आपसे रिजल्ट भी शेयर करूंगा, तो मैंने जो सुबह 8 बजे तक आए थे मैंने सारे कंपाइल कर लिए। इन द मीन टाइम आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताते रहे। 4 मिनट रहते हैं मेरे टाइम के खत्म होने में। ये है जी रिजल्ट, जिगर थाम के बैठे हुए, ये आज का रिजल्ट है। कितने माशाल्लाह बच्चों ने, कोई 12 बच्चों ने 100% मार्क्स लिए हैं। कैन यू सी इट? मैं जरा से इसको और इलाज कर दूं। ये जी, ये अल्फाबेटिकल है, ये नहीं है कि अक्सर यासर के ने बहुत ज्यादा अच्छा बाकियों से किया। ये सबके इक्वल हैं जिनके 10 मार्क्स हैं कि उन्होंने लेकिन अल्फाबेटिकल नाम है। वकास का W से है तो उसका आखिर में आता है बेचारे, ठीक है। तो वेल डन जी, बहुत। मैंने तो मुश्किल अपनी तरफ से भेजे थे, अगर वाकई आपने खुद किया है, होपफुली आपने खुद ही किए हैं, तो ये बहुत अच्छी माशाल्लाह सर्च है। नूर का जो सिर्फ एक यूरिया साइकिल डिफेक्ट गलत हुआ था, ठीक है, तो इस वजह से 9 आया। बाकियों का भी एक बहुत सारे जिनका 1 गलत है, 2 गलत हैं, ठीक है। फरीदा का नहीं आया आंसर। ये अभी बाकी अगर इस लेक्चर के दौरान आ गए हैं तो ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये कंपटीशन का मामला भी है। तो ये ना होना कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, ठीक है। अच्छा भेजा था, चलो देख लेते हैं। वो तो टाइम नोटेड होता है बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? थैंक यू जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, मैं एक चीज बता दूं, नेक्स्ट प्रॉब्ली मंडे को ही होगा। वेडनेसडे को आई एम गोइंग ऑन लीव, तो मंडे को ही होगा और टॉपिक DSD होगा। हाँ सॉरी, फ्राइडे, मतलब मैं पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूँ। पैथोफिजियोलॉजी विल बी ऑन मंडे एंड द टॉपिक विल बी DSD। परसों जो है वो बहुत मुश्किल टॉपिक है। परसों नहीं, फ्राइडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल, ठीक है। तो फ्राइडे को टेक्निक्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और मंडे को पैथोफिजियोलॉजी में DSD है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे जो है ना प्रॉब्ली हम अमीनो एसिड बाय करणवीर, ठीक है। तो अच्छा, इस महीने का ये प्रोग्राम, चूंकि हमारा ये बैच का ये लास्ट वीक शुरू हो गया तो ये जा रहे हैं, तो इससे नेक्स्ट वीक का फिर हम प्रोग्राम दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।